Good afternoon, sir. Good afternoon, Preeti. We are live. Shall I start? Yes, we can start. Good afternoon, everyone. Welcome to Facebook live session from Dr. Makkar's Diabetes and Obesity Center. I am Dr. Kirti Soja. As we all know, diabetes is a chronic metabolic disorder characterized by elevated blood glucose levels and which can lead to serious damage to various organs of the body if not controlled properly. Management of chronic diabetes-like diseases is possible, but not easy. So, dear friends, let's begin today's session with Dr. Makkar and come to know how to manage diabetes 360 degrees. So, the first question of the day to you is, what do you want to convey by this topic, 360-degree approach? Thank you, Dr. Kirti. Good afternoon, everyone in the audience. See, it is very important to understand that diabetes, though it is characterized by increase in blood glucose, and everybody understands that diabetes is a disease where blood glucose is increased. But increased glucose is just one component of the total diabetes problem. So, when we say 360 degrees management, that means we have to look beyond glucose, right? So if somebody has diabetes, there is not just increase in glucose. In addition, there is increase in, when we specifically come to type 2 diabetes, which is the most common type, there is increase in cholesterol level, there is increase in blood pressure, there is increased risk of heart disease, which is as high as, 4 times as compared to a non-diabetes individual. Just to convey to everyone the seriousness that we should look at, with which we should look at diabetes regarding the heart risk, is that 75% people with diabetes die of a heart attack. They don't die of diabetes, they don't die of kidney complications. Even people who get kidney disease, who get renal failure, majority of them also die of heart disease. So most common cause of death in diabetes is heart disease, right? So we have to look at blood pressure, we have to look at cholesterol levels, we have to look at body weight, have to look at what are the complications happening, whether kidney is getting affected or the eyes are getting affected or there is a damage to nerves, and we have to take care of all these things. So it is not just that we have to lower glucose and forget about everything. So that is why diabetes management, when we talk of diabetes management, it's a management one of the glucose and then beyond glucose. Both the components are very important. That's why I thought that we should keep it diabetes management 360 degrees. So with a very, very holistic approach to take care of all the aspects of diabetes and associated issues. Wonderful, sir. Sir, so my next question to you is, what do you mean by holistic approach? We always talk of it, holistic approach, but what exactly is this holistic approach? So, what happens is a person comes to us with diabetes. Now, if we look at glucose, we are likely to miss so many things. So we have to keep in mind that somebody has come to us with diabetes. Fine. Person is concerned about his sugar, because this person is not having all the knowledge about diabetes and its associated comorbidities or the associated risk of complication. But as a physician, it is our duty to make sure that we don't miss on all these things. So we have to look at glucose. We also have to look why his glucose is not getting controlled, if it is not getting controlled, or what is the best way to control it. Second thing is this person having any additional risk factors? One of the major risk factors is overweight and obesity. 75%, 80% of people with diabetes are overweight or obese. But problem is, most of the time, people are treated for diabetes and obesity is ignored. Nobody treats for overweight or obesity. Now, most of the people, if
the data shows that as many as 70% of the people may be having abnormal lipid levels, abnormal cholesterol levels. Now, if we don't address them, they are at much greater risk of heart disease as compared to when we are treating them for cholesterol levels also. 50% of people with diabetes are likely to have high blood pressure also. Now, if we are not checking blood pressure, we are just looking at glucose, we are likely to miss 50% people who have high blood pressure, because of which they are at increased risk of heart disease and kidney disease also. At the time of first diagnosis, 25% of people have some one or other complication of diabetes. Now, if we are not screening them for the risk, the presence of complications, we are likely to miss the damage that has already happened. And we are presuming that this person is coming to us with new onset diabetes. When we say new onset diabetes, that means that diabetes has just started. But the problem is most of the people with type 2 diabetes do not have any symptoms. So the average time to diagnosis from onset in various studies have been reported anything between 2 to 7 years. Person may remain undiagnosed for 2 to 7 years before we diagnose. So already person has got the damage of 2 to 7 years of increased glucose levels. If we look at the data in Indian setting, we have more than 7.5 crore diabetic patients. That is the estimated figure. Of these, almost 55% of the patients are not diagnosed. So how will we find out, what all problems are there? So when we are looking at the patient, we have to take care of all these aspects into, consideration. Every diabetes has 3 to 4 times higher risk of having a heart disease. Now, if we are not screening them for a heart disease or presence of risk factors for heart disease, we are doing a blunder. So that is why a holistic approach is required. We have to look at the patient as individual who is affected with diabetes as one component, but he must be maybe having other risk factors and other problems which also need to be addressed. So that is what I mean by holistic approach. Perfect. So सर, अगर हम बात करते हैं डायबिटीज मैनेजमेंट की, तो सिर्फ दवाइयां शुगर की नहीं लिखनी, बहुत सारे अपने दूसरी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें एक प्रिस्क्रिप्शन फ्रेम्ड होना चाहिए. सबसे पहली चीज तो ये है कि हमने खाली दवाइयों पे ही फोकस नहीं करना है. होलिस्टिक अप्रोच में लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी की दवाइयां हैं. एवरी पेशेंट हैज टू एक्सरसाइज रेगुलरली. एक फिजिकल इनएक्टिविटी आपको कम करनी है, फिजिकल एक्टिविटी आपको बढ़ानी है. अगर आप नहीं बढ़ा रहे हैं, आपका मसल मास कम होता है और वीक होता जाता है, जिसकी वजह से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है. अगर आपका वेट ज्यादा है, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, खाने पे फोकस नहीं करते, वेट और गेन करते हैं, कई बार दवाइयों से भी वेट गेन करते हैं, वो एक मेजर चैलेंज होता है. तो एक रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है. फिजिकल एक्टिविटी से बहुत सारे और बेनिफिट मिलते हैं. डायबिटीज कंट्रोल इंप्रूव करता है, मसल मास इंप्रूव करता है जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, रेस्पिरेटरी फिटनेस बढ़ती है, आपकी ब्रीदिंग बेटर हो जाती है, हार्ट की फिटनेस बढ़ती है. जितना आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हार्ट की टॉलरेंस बढ़ती जाती है. जो ब्लड सर्कुलेशन होता है आपका वो बढ़ता रहता है. जो आपके लिपिड लेवल होते हैं वो बेटर रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बेटर हो जाते हैं, डिप्रेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं आदमी को. एक मेंटल हेल्थ उसकी इंप्रूव करती है, ओवरऑल फिटनेस लेवल बड़ी बेटर होती है, जॉइंट्स बेटर होते हैं, लिम्ब मसल्स बेटर होती है, क्योंकि आप वॉक कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं. जितनी आपकी मसल स्ट्रांग होती है उतने आपके जॉइंट्स भी स्ट्रांग रहते हैं, उतना ही आपका बोन मिनरलाइजेशन बेटर होता है, बोन्स में कैल्शियम की कमी होने के चांसेस कम होते जाते हैं, आपका ओवरऑल फिटनेस लेवल बढ़ा रहता है, आप ओवरऑल कॉन्फिडेंस आपका लेवल बढ़ जाता है, आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है. तो एक्सरसाइज के इतने सारे बेनिफिट्स हैं अगर हम देखें तो. बट एक लाइन में हम कह देते हैं एक्सरसाइज जरूर करनी है, उस पर हम फोकस ही नहीं करते. सो दिस इज ऑल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट. Similarly, diet modification is also integral part of treatment. खाली ये कह देना कि मीठा नहीं खाना या
आधे से ज्यादा पेशेंट हमें आगे कहते हैं डॉक्टर साहब मैं मीठा नहीं खाता, आलू चावल भी नहीं खाता। अब दुनिया के जिन हिस्सों में चावल स्टेपल डाइट है वहां तो डायबिटीज ट्रीट ही नहीं कर सकते हम। उनको चावल की जगह क्या खिलाएंगे? रोटी बनाना तो सिखाने जाएंगे नहीं हिंदुस्तान से सब लोग। तो सी देयर इज नो फूड विच इज प्रोहिबिटेड। इंपॉर्टेंट थिंग इज पेशेंट नीड्स टू बी एजुकेटेड कि आपको क्या खाना है, कितने प्रोपोर्शंस में खाना है, आपने हेल्दी ईटिंग कैसे रखनी है, हेल्दी ईटिंग बिहेवियर कैसे मेंटेन करना है। तो ये छोटी छोटी चीजों से लाइफस्टाइल भी बेटर होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर होती है और डायबिटीज मैनेजमेंट भी बेटर होती है। सो लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस भी उतनी ही बेटर इंपॉर्टेंट है जितना कि प्रिस्क्रिप्शन लिखना इंपॉर्टेंट। और प्रिस्क्रिप्शन में जो दवाइयां हम यूज कर रहे हैं, हमने खाली ये नहीं देखना होता कि इसका हमने शुगर कंट्रोल करना है, हमने ये भी देखना है कि इन दवाइयों की वजह से कोई और रिस्क तो नहीं बढ़ रहा है। दूसरी चीज, अगर हमारे पास कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो शुगर तो कंट्रोल कर रही हैं, किडनी प्रॉब्लम्स का रिस्क कम कर रही हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स का रिस्क कम कर रही हैं, तो हम प्रेफरेबली वो दवाइयां यूज करेंगे। बहुत सारे फैक्टर्स हमें सोच के चलना है जब डायबिटीज में। So we are talking about diet, lifestyle intervention, and weight. They are very important in management of diabetes. But my question to you is it important for all types of diabetes? Let's talk about type 1, type 2, and gestational. Yes. So exercise is important for all kinds of diabetes, irrespective of what type it is. टाइप 1 में भी एक्सरसाइज होने से आपकी जो ओवरऑल एफिशिएंसी होती है सिस्टम की, वो बेटर रहती है। दूसरी चीज है, आजकल हम जैसे जैसे बच्चे बड़े, टाइप 1 नॉर्मली बच्चों में होती है, जैसे ही बच्चे बड़े होना शुरू करते हैं उनका वेट गेन होना शुरू होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है। और आजकल हम टाइप 1 में टाइप 2 का ओवरलैपिंग सिम्टम्स भी देखते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस। नॉर्मली टाइप 1 में इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होता है, खाली टाइप इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है। सो एक्सरसाइज हर एक इंसान के लिए जरूरी है अपने सिस्टम को ठीक रखने के लिए। ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज किसी एक पर्टिकुलर टाइप की डायबिटीज के लिए यूज जरूरी है। इनफैक्ट हर इंसान के लिए जो हेल्दी रहना चाहता है, चाहे उसे डायबिटीज है या नहीं है, कोई बीमारी है या नहीं है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज हर इंसान के लिए जरूरी है और उसकी हेल्थ इंप्रूवमेंट का उसको एडवांटेज मिलता ही है। सर, डायबिटीज की आज भी हमारे पास लिमिटेड मेडिसिन है, बट क्या कहीं रोल आता है इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट का, और अगर आता है तो वो कैसे आता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, हर कोई दो पेशेंट एक से नहीं होते हैं, तो कोई दो पेशेंट को हम एक साथ ट्रीट भी नहीं कर सकते। इसलिए दूसरी चीज है, जैसे आपने कहा कि लिमिटेड मेडिकेशन है, ठीक है, लिमिटेड मेडिकेशन है, उसके बीच में ही हमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्रिएट करने होते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास एक पेशेंट है जो हमारे पास 40 इयर्स की एज पे या 30 इयर्स की एज पे डायबिटीज लेके आ गया, ठीक है, और ग्रॉसली ओवरवेट है। अगर इस पेशेंट को हम वेट रिडक्शन पे डालें तो हो सकता है इसकी डायबिटीज हम रिवर्स कर सकते, बट अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज ट्रीट होती है और ओबेसिटी को इग्नोर कर दिया जाता है। सो इस पेशेंट में हमारा ट्रीटमेंट अप्रोच ये होनी चाहिए कि सबसे पहले लाइफस्टाइल इंटरवेंशन पे फोकस करना है और हमने वेट रिडक्शन पे फोकस करना है। अगर ये दो चीजें हम साथ में कर लेंगे तो डायबिटीज ऑटोमेटिकली आपकी मैनेज हो जाएगी और काफी चांसेस हैं रिवर्स भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ एक पेशेंट आता है हमारे पास 30 इयर्स की एज पे जिसको डायबिटीज होती है और उसके सिम्टम्स जो है बिल्कुल डिफरेंट है। वो ओवरवेट भी नहीं है, ओबीस भी नहीं है, सडन ऑनसेट हुई, बहुत सिग्निफिकेंट वेट लॉस हो गया। सो टिपिकली वो टाइप जो है टाइप 1 की तरह प्रेजेंट कर रहा है, जिसको लाडा कहते हैं या लेट ऑनसेट ऑटोइम्यून डायबिटीज। उसको हो सकता है हमें पहले दिन से दवाइयां और इंसुलिन पे फोकस करना और वेट रिडक्शन नहीं चाहिए हमें। जैसे उसका वेट एक्चुअली शुगर कंट्रोल होगा, उसका थोड़ा वेट गेन होगा। अब सपोज हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि एक पेशेंट हमारे पास 70 साल की एज पे या 75 साल की एज पे आके डायबिटीज से डायग्नोस होता है। अब उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे हिसाब से 10 साल या 15 साल हम मान के चल रहे हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी और है। अगर आज की डेट में हम डायबिटीज को उसकी अनट्रीटेड भी छोड़ दें तो इट इज अनलाइकली कि 5 से 10 साल में कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन हो।
तो उसके लिए हमारा टारगेट जो है ग्लूकोज लोअर करने का वो बहुत ज्यादा नहीं है। हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट टारगेट है कि इस एज पे पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होना चाहिए। सो वी विल गिव दिस पर्सन मेडिकेशन जिससे ग्लूकोज लो होने का रिस्क कम होता है। अगर उसका शुगर कभी बहुत सिग्निफिकेंटली ड्रॉप करता है और वो पेशेंट गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, हो सकता है फ्रैक्चर कर ले, हो सकता है कोई और मेजर इंजरी कर ले जो इस एज में कॉमन होती है। सो हमें हाइपोग्लाइसीमिया नहीं चाहिए इस पेशेंट। सो इसका शुगर अगर 130-40 चल रहा है फास्टिंग और खाने के बाद 180-200 भी चल रहा है, तो हमारे लिए वो एक्सेप्टेबल रेंज है, क्योंकि हमें पता है 10 साल इसके बिना कॉम्प्लिकेशंस के 15 साल निकल जाएंगे, कोई मेजर इशू नहीं। और क्वालिटी लाइफ जो आप क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं बहुत इंटेंसिव ट्रीटमेंट देके। वही एक पेशेंट हमारे पास 40 साल की एज पर डायग्नोसिस लेके आता है डायबिटीज की, एक्टिव आदमी है, पढ़ा लिखा है, रेगुलर शुगर मॉनिटरिंग कर सकता है, रेगुलर अपना टेस्ट करा सकता है, लाइफस्टाइल फॉलो कर सकता है। हमें पता है इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी 40-45 साल है, इसको कॉम्प्लिकेशन से हमें बचा के चलना है। तो उसके लिए हमें यही देखना है कि उसका ग्लूकोज जो बेस्ट कंट्रोल हो सके वो करें। सो हमारा टारगेट A1C हो सकता है 6.5 के भी नीचे हो। हमारा फास्टिंग ग्लूकोज उसके लिए 110 से 100 की रेंज में होना चाहिए। पीपी उसका 140-50 की रेंज में हम रखेंगे। उसका हमें कोलेस्ट्रॉल लेवल भी लो रखना है ताकि उसकी हार्ट की प्रॉब्लम का रिस्क कम रहे। उसको हमें रेगुलरली किडनी इन्फेक्शन के लिए चेक करते रहना है। उसका बॉडी वेट भी हमें टारगेट करना है, अगर ओवरवेट है तो रिडक्शन रखना है। ब्लड प्रेशर है तो उसको अच्छे से कंट्रोल रखना है ताकि उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं बढ़े। सो उसके हमने सारे फैक्टर्स अच्छे से एग्रेसिवली मैनेज करने हैं सो दैट दिस पर्सन कैन go till another 45 years without getting any kind of complication. यही पेशेंट हमारे पास आता है रूरल बेल्ट से। वो ट्रीटमेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो मॉनिटर भी नहीं कर सकता है, हमें ये नहीं पता वो फॉलोअप के लिए किस दिन आएगा, दोबारा आएगा कि नहीं आएगा। अब हम उसको उतनी ही दवाई देना चाहेंगे कि इससे इसको कम से कम लो शुगर नहीं हो, बहुत ज्यादा भी नहीं जाए और लो भी नहीं हो। दूसरा, अगर ये रेगुलर टेस्टिंग नहीं कर रहा है तो इसकी कोई दवाई की वजह से साइड इफेक्ट्स आने के रिस्क नहीं हो, जो इसके जैसे एक सडन हाइपोग्लाइसीमिया हो गया और बेहोश हो गया आदमी सड़क पे, तो पता भी नहीं चलेगा क्या हो। सो हमें उसका टारगेट जो है थोड़ा डिफरेंट रखना पड़ेगा। सो हर इंडिविजुअल एक डिफरेंट पेशेंट है, उसका ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी हमें उसके हिसाब से ही बनानी। Don't you think it's high time now for the patients also and doctors also to take diabetes in a different way? Yes, I think most of the people are becoming more and more educated and aware, और लोग अब इसको थोड़ा सीरियसली लेना शुरू हो गए। पहले बिल्कुल लापरवाही वाले मोड में होते थे, अब थोड़ा बेटर होता जा रहा है, पर अभी भी काफी स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स अभी भी नेग्लेक्ट ही करते हैं। सर, पर टिल डे आई सी पेशेंट्स जो केमिस्ट से दवाई लेके खा लेते हैं, या उसने उस डॉक्टर को दिखाया था ये दवाई खा रहे थे वो तो मैंने भी ले ली। दे शुड सबसे अंडरस्टैंड। बड़ी चीज होती है कि यस, पेशेंट्स फॉलो अप ही नहीं करते। आज आज की आई हैव सीन वन पेशेंट, very well educated patient, was on treatment with me, came after 9 years, 9 years no follow up, and tells me, डॉक्टर साहब मैं तो आपकी वाली दवाई खा रहा हूँ। So I had to tell him कि ये आप जो दवाई खा रहे हो आप अब इस टाइम ऑब्सोलीट मोड में हो। हम इससे बहुत बेटर दवाइयां हमारे पास हैं जो हम यूज कर सकते थे, और फॉर्चुनेटली आपको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हुए उन दवाइयों के जो आप खाए जा रहे हो कॉन्टिन्यूसली विदाउट मॉनिटरिंग। अगर होंगे तो हमें कैसे पता चले। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइम पे आपको अपने फिजिशियन को कंसल्ट करते रहना है, ऐसे आंख बंद करके नहीं चलना है। आइडियली अगर आप फ्रिक्वेंटली जा सकते हैं पेशेंट फिजिशियन के पास, महीने 2 महीने में एक बार विजिट करते रहना चाहिए। नहीं तो मैक्सिमम 3 महीने पे तो आपको हर बार अपने फिजिशियन को विजिट करना ही है। एक A1C अपना चेक करना है, और कोई फर्दर टेस्ट की जरूरत है तो वो करना ही है, और रेगुलर अपनी शुगर मॉनिटरिंग करनी है ताकि आप ठीक कंट्रोल रेंज में रह सकें।
And so till day, what I am seeing is the patients have more faith in alternative medicine for diabetes management than our medicines. So today we had other patient also who was on new detection diabetes. 1 महीना पहले डायबिटीज डिटेक्ट हुई, 13 किलो वेट लूज कर चुका है। और क्योंकि दवाई नहीं खानी है, अभी देखते हैं तो डाइट पे फोकस है, दवाई नहीं खा रहे हैं। और आज 550 शुगर है, कीटोसिस शुरू हो गई है, तो उसको हॉस्पिटलाइज करने के लिए भेजना पड़ा है। सो ये सब चीज़ों में आप अपना कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क भी बढ़ाते हैं और अपनी लाइफ का रिस्क भी बढ़ाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा आपका शुगर लेवल चल रहा है, आपको कीटो एसिडोसिस होती है, तो आप इट कैन बी ए लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन। सो हमेशा डायबिटीज को हमेशा सीरियसली लेना है, राइट फ्रॉम डे 1 ऑफ डायग्नोसिस। और आप लाइफ जो हम ये अल्टरनेटिव मेडिसिन को हम कहते हैं इंडिजिनस मेडिसिन, आज की तारीख में हमारे पास कोई ऐसी दवाई नहीं है इंडिजिनस जो बहुत अच्छा शुगर कंट्रोल आपको दे सकती है। दे आर एट बेस्ट एडजंक्ट टू लाइफस्टाइल इंटरवेंशन, बट दे कैन नॉट बी ट्रस्टेड अपॉन फॉर कंट्रोलिंग डायबिटीज। सो जब भी आप कुछ ले रहे हैं, हमेशा अपने फिजिशियन के कंसल्टेशन के बिना आपको ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, रेगुलरली अपनी शुगर चेक करते रहनी चाहिए। और अगर आपकी शुगर 5-7 दिन में नीचे नहीं आ रही इन दवाइयों के साथ, तो आपको इमीडिएटली इसको छोड़ के रेगुलर मेडिकेशन पे आना चाहिए। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में आज तक मैंने कोई पेशेंट नहीं देखा जो खाली इन दवाइयों पे कंट्रोल हुआ। Another very important is psychosocial aspect. Do you consider psychosocial well-being also a part of holistic approach? Absolutely, it is the most important thing. That is why I was saying, जब आप लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस पे काम करते हैं, आपका डिप्रेशन लेवल कम हो जाता है फिजिकल एक्टिविटी से, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपका फिटनेस लेवल बढ़ता है, आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ती है। अगर आप कंट्रोल्ड हैं, आप थोड़ा बहुत आगे पीछे पार्टी में जा रहे हैं, आप थोड़ा बहुत आगे पीछे खाते हैं, तो एक दिन आपका शुगर डिस्टर्ब होता है, अगले दिन फिर कंट्रोल होता है। यू गेट यूज्ड टू लिविंग विद डायबिटीज कंफर्टेबली, एज नॉर्मल लाइफ एज पॉसिबल, विद माइनर रिस्ट्रेंट्स। कोई मेजर डायबिटीज के साथ आप प्रैक्टिकली एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं अगर आप थोड़े डिसिप्लिन हैं। इनफैक्ट आई टेल माय पेशेंट्स कि अगर आपको डायबिटीज है और अगर आप इसको पॉजिटिव लेते हैं, you don't perceive this as a drawback, you take this as an advantage or a good warning for you that now you should focus on your health. And if you focus on your health, you live much better life. In fact, एक बहुत मेजर स्टडी हुई थी, स्टीनो डायबिटीज सेंटर है डेनमार्क में। So those people treated diabetes patients very comprehensively. So हर पेशेंट को डायबिटीज की दवाई तो दी गई, ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए भी दवाई दी गई, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी दी गई, एस्पिरिन भी दी गई, डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एवरीथिंग वाज इन प्लेस। और दूसरा ग्रुप था जो नॉर्मल कन्वेंशनल ट्रीटमेंट पे था। जिन लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट जिनका दिया गया था, 20 इयर्स फॉलोअप में 7 इयर्स लाइफ स्पैन उनका बढ़ गया, एज कंपेयर टू पीपल हु वर not on the comprehensive treatment, and quality of life तो definitely better थी। So आप खुद सोच सकते हैं कि कितना इससे बेनिफिट होता है कि अगर आप एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच से अपनी डायबिटीज को ट्रीट करते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर रहती है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं, डिपेंडेंस नहीं आती आपके किसी के ऊपर, आप इंडिपेंडेंट रहते हैं, सारी चीजें आपके लिए बेनिफिशियल। We always tell our patients to have a support system. It can be the family, the friends, or the social support groups. Except that you have diabetes, it's not a social stigma. Come up, bolo, सीखो, जानो. Yesterday I was listening to sir, जो अपनी बीमारी के बारे में सबसे ज्यादा जानता है, especially diabetes, वो उसको ज्यादा अच्छे से मैनेज करता है। बिल्कुल बिल्कुल है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। So most important thing for a patient is to learn as much as possible about the disease, क्योंकि उसके साथ उसको मैनेज करना बहुत आसान होता जाता है। और
जब वो खुद मैनेज कर सकता है तो नेचुरली उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होती है, डिपेंडेंस मिनिमम होती है। जहाँ डिपेंडेंस ज्यादा होती है, आपको पता ही नहीं क्या करना है, आप खुद को आप तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते, आप कॉम्प्लिकेशन ज्यादा कर रहे हैं। मेरे को लगता है एजुकेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि लापरवाही नहीं होनी चाहिए डिजीज की। बहुत सारे लोग हैं, जैसे अब आज का ही एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, educated person not coming for follow up, not going to anybody for follow up. Suppose you can't come to me, you can find a doctor nearby. It is not necessary that you have to go to one particular doctor. Okay, but 9 years you are not going for follow up. तो ये जो केयरलेस एटीट्यूड होता है, ये भी बड़ा खराब होता है। सो लापरवाही नहीं करनी चाहिए। शुगर नहीं मारती है किसी को, मारती हमेशा लापरवाही। अगर आप लापरवाह रहेंगे, आप कंट्रोल नहीं करेंगे, आप चीजों को नेग्लेक्ट करेंगे, दवाइयां अपनी कभी खा ली कभी नहीं खा ली, खाने में भी रेगुलर हैं, टेस्ट भी नहीं करते, तो ये सब चीजें आपकी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ ले जाती हैं। यही अगर आप आंखें खोल के चलते हैं, सारी चीजें मॉनिटर कर रहे हैं, लाइफस्टाइल अच्छा रखते हैं, सारी चीजों के लिए दवाई ले रहे हैं, जो जो जरूरत है आपकी पूरी दवाइयां खा रहे हैं, तो नेचुरली आपकी लाइफस्टाइल भी बेटर रहता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर रहती है और कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होती। सर, बात आप कर रहे हैं कॉम्प्लिकेशंस की, और हम सब जानते हैं कि शुगर है वो बालों को, आंखों को, दांतों को, स्किन को, हार्ट को, किडनी को, सब ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। तो प्लीज आप बताएंगे हमें कि कैसे हम इन कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड कर सकते हैं। तो डायबिटीज के दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, दो मेजर जो सेट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उनको कहते हैं हम माइक्रोवास्कुलर एंड मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन। मैक्रोवास्कुलर मतलब लार्ज ब्लड वेसल्स जहाँ पे सप्लाई होती है, उन ऑर्गन्स का डैमेज, और माइक्रोवास्कुलर जहाँ स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं उनका डैमेज। बेसिकली शुगर ब्लड में फ्लो कर रही है आपके हर जगह पे, एंड एवरी टिश्यू और सेल नीड शुगर फॉर यूटिलाइजिंग शुगर फॉर एनर्जी। अब आपको डायबिटीज है तो यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, तो शुगर लेवल्स बड़ा होता है। अब हर टिश्यू में प्रोटीन होता है, जहाँ शुगर बड़ा होता है वो प्रोटीन को डैमेज करता है हर टिश्यू, और वो डैमेज ग्रेजुअली बढ़ता जाता है, और एक स्टेज आती है जब वो डैमेज इतना बढ़ जाता है कि वो कॉम्प्लिकेशन बन के सामने आ जाता है। सो आपकी आईज डैमेज होती हैं, किडनीज डैमेज होती हैं, हार्ट डैमेज होता है, नर्व्स डैमेज होती हैं, ब्लड वेसल्स डैमेज होती हैं, पैरों में डैमेज मेजरली होता है, सेंसेशंस खत्म हो जाती हैं, जॉइंट्स खराब हो जाते हैं, ब्रेन में स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पैरों का या लोअर लिम्स का सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। डायबिटीज के साथ बहुत सारे कैंसर्स का रिस्क बढ़ जाता है। सो ये सारी ही कॉम्प्लिकेशन हैं जो हमें स्क्रीन करनी पड़ती हैं जब हम डायबिटीज पेशेंट को देखते हैं। हमें ये देखना है कि खल इसका शुगर, अभी एक तो शुगर इशू है, उसके अलावा और क्या क्या इशू, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है कि नहीं है, किडनी में कोई डैमेज के साइन है कि नहीं। तो फर्स्ट इनिशियल डैमेज होता है कि यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हुआ, माइक्रो लेवल पे आया तो माइक्रो प्रोटीन यूरिया देखते हैं। किडनी के फंक्शन में और कोई डैमेज है कि नहीं। लिवर में फैट जमा होती है, जो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर सामने आ रहा है, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जो है, वो खाली लिवर को डैमेज नहीं कर रहा है, वो आगे हार्ट की प्रॉब्लम का रिस्क भी बढ़ा रहा है। सो लिवर में फैट है कि नहीं, लिवर एंजाइम्स नॉर्मल है या नहीं है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कितने हैं, एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल गिना जाता है उसका लेवल हमें नॉर्मल जो है 100 तक लेते हैं, 100 के नीचे हो या 130 के नीचे हो और कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, बट डायबिटीज में हमें उसका लेवल 70 के नीचे चाहिए। अगर उसका 70 भी है तो हर पेशेंट को हमें एक दवाई देनी होती है स्टैटिन, जो कि रिकमेंडेड है टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। अगर वो दवाई हम यूज कर रहे हैं तो भी हम रिस्क को 0 पे नहीं ला सकते, रिस्क तब भी बढ़ा रहता है, बट जितना हम रिडक्शन कर सकते हैं वो हमें करना है। ऐसे ही हमने ये भी देखना है कि पैरों में सर्कुलेशन ठीक है, सेंसेशंस ठीक हैं, आईज का विजन ठीक है, फंडस एग्जामिनेशन हर साल देखना चाहिए कि रेटाइना लेवल में कोई कॉम्प्लिकेशन नजर नहीं आ रही है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो किडनी, आईज, हार्ट सबकी कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है तो सारी कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ जाता है।
अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो तो रिस्क बढ़ जाता है, अगर आपका वेट ज्यादा है तो सारी कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ जाता है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो जाता है, उससे सडन डेथ्स का रिस्क बढ़ जाता है। मतलब इतनी चीजें ये आपस में इंटरट्वाइंड है कि कोई चीज को आप छोड़ नहीं सकते। तो आपको सारी ही चीजों को देखना है, और कॉम्प्लिकेशंस के एंगल से स्क्रीनिंग बड़ी जरूरी होती है कि हर साल आप एक प्रॉपर स्क्रीनिंग हेड टू टो करें कि कोई चीज हम मिस तो नहीं कर रहे हैं डायबिटीज में, और खाली शुगर पे फोकस करके नहीं चल। सो सर, आपके हिसाब से की टू मैनेजिंग डायबिटीज क्या होनी चाहिए? So key to managing diabetes is that just don't manage sugar levels. Manage the patient as individual who needs management not only for blood sugar level, but all the other associated risk factors or complications that may be happening in the individual because of diabetes. So diabetes management is one part is sugar management, and the much bigger part is beyond sugar control. So that brings to the end of the session. Thank you everyone for joining. And we will have part 2 of this, where we will focus more on beyond sugar control. Today we have talked about sugar, its implications, and what all can be associated with diabetes. So in part 2 we will take what all is important and how we manage beyond sugar in patients with diabetes. Thank you Thank everyone for joining. Thank you.